are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے مسیح یسوع کا بدن. کیا مضمون ہے؟ میں یہ امید کرتا ہوں کہ جنہیں اردو یا رومن یا انگریزی لکھنی آتی ہے وہ اس میسج کو نوٹ بھی کریں گے. ہم کتنا بھی سن لیں، سنتے سنتے جو ہی ہم دنیا کی مصروفیات میں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن لکھا ہوا ہو تو ہم کبھی بھی اسے ریپیٹ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. ویسے تو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہوتے ہیں، فیس بک پر بھی آپ اسے دوبارہ بھی ریپیٹ سن سکتے ہیں. سو آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے یسوع مسیح کا بدن. آمین. دا باڈی آف کرائسٹ. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ایک خدا کی تین شخصیت پر، تین پرسنالٹی پر، باپ، بیٹا اور روح القدس پر. اور یہ وہ کریکٹر ہیں، پرسنالٹی ہیں جو یسوع مسیح کی صورت میں، روح القدس کی صورت میں خدا نے ہمارے سامنے جو ہے پیش کی ہیں. ان تینوں اقنوم میں سے جو ایک اقنوم ہے بیٹے کا، باپ، بیٹا، روح القدس میں سے بیٹے کا جو اقنوم ہے، بیٹے کا جو آفس ہے، اس نے انسانی بدن کو اپنے اوپر پہنا ہے. جیسے ایک لباس پہنتے ہیں اس طرح سے بیٹے نے اپنے اوپر انسان کے بدن کو، باڈی کو اس نے لیا ہے، پہنا ہے. اور یسوع مسیح کا بدن جو ہے وہ جی اٹھنے کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے. اگر بدن ہی نہ ہوتا تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے ہمارے لیے مار کھائی ہے، اس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، ہمارے لیے وہ جی اٹھا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ تھرو باڈی، بدن. اس لیے جو بدن ہے اس کی اہمیت ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کی جو ظاہری فاؤنڈیشن ہے وہ اس کی باڈی ہے. اس لیے وہ ایزیلی کسی بھی انسان کے بدن کو استعمال کر کے پیدا نہیں ہوا، بلکہ خصوصاً ایک خاص پاک عورت کو استعمال کیا گیا ہے جسے ہم مقدسہ مریم کہتے ہیں. سو کیوں بیٹے کو، خدا کے بیٹے کو انسان بننا پڑا؟ کیوں اسے بدن لینا پڑا؟ اس کی بڑی وجہ اور ایک ہی وجہ یہ ہے کہ جو انسان جسے کامل بنایا گیا تھا وہ گناہ میں گر گیا تھا، اور اسے واپس لانے کے لیے، اسے بچانے کے لیے بدن میں آنا ضروری تھا، جسم میں آنا ضروری تھا. ہماری جگہ بکرا، بچڑا، اونٹ یا کوئی اور جانور جو بھی دنیا میں قربانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہمارے متبادل وہ قربانی نہیں دے سکتا تھا. یعنی ہم کسی چیز کو خرید لیں، ہم گناہ کرتے رہیں، ہم خطائیں کرتے رہیں اور اس کو اپنے عوض جو ہے، اپنی جگہ جو ہے اسے قربان کر دیں. ضرور تھا کہ انسان کی نسل میں گناہ ہوا ہے تو انسان میں سے ہی کوئی آ کر انسانوں کے لیے قربان ہوتا، قربانی دیتا، اس کا عوضی بنتا. تو گرے ہوئے انسان کو جو گناہ میں گرا ہے اسے بچانے کے لیے بدن ضروری تھا، اور اس بدن کی شرط یہ تھی کہ وہ بدن پاک ہو، اسے قربانی دینے والا بھی پاک ہو، قربان ہونے والا بھی پاک ہو. اور چونکہ انسان جو ہے اس کے گناہ ایک انسان سے منتقل ہوتے ہیں، ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو کوئی بھی انسان جو ہے اس دنیا میں پاک نہیں تھا. اس لیے خدا کے بیٹے کو، خدا کے اس آفس کو انسان بننا پڑا، اور وہ انسان بنا اور اس نے انسانی صورت اختیار کی.
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک انسان خدا بنا ہے. ہم کہہ رہے ہیں خدا کے ایک آفس ہے, بیٹا ہے, اور وہ کیا بنا ہے؟ انسان بنا ہے. خدا نے انسانی صورت جو ہے وہ اختیار کی ہے تاکہ انسان کے لیے انسان ہی فدیہ دے, قربان ہو سکے. لہذا آدم کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے, اور خدا کے ہاتھوں نے اسے کریٹ کیا اور اس کے اندر زندگی کے دم کو پھونکا ہے, تو وہ جیتی جان ہوا ہے. اور یہ کامل تھے کیونکہ ابھی تک ان میں کوئی گناہ نہیں آیا تھا, نو سن. پھر اس کے بعد آدم کی پسلی لے کر اس سے ہوا کو بنایا گیا, عورت کو. پھر ہابل اور قائن جو ہے وہ آدم اور ہوا کے ملنے سے پیدا ہوا ہے. لیکن یسوع مسیح کا جو پیدا ہونا ہے وہ عجیب ہے. وہ آدم کی طرح نہیں ہے, وہ ہوا کی طرح نہیں ہے, وہ ہابل اور قائن کی پیدائش کی طرح نہیں ہے. ہابل اور قائن کی پیدائش میں آدم اور ہوا کا دخل ہے. ہوا کی پیدائش میں بننے میں آدم کا دخل ہے, اور آدم کو بنانے میں مٹی کا دخل ہے, اور خدا کے ہاتھوں نے اسے کریٹ کیا. لیکن یسوع مسیح کا پیدا ہونا بھی منفرد ہے, فرق ہے, اور ہر شخص اسے قبول کرتا ہے کہ ہاں وہ عجیب پیدا ہوا. کیوں خدا نے ایک انسان کو سارے کھربوں انسانوں سے فرق پیدا کیا؟ اس کا مطلب وہ ساری انسانوں سے فرق ہے, وہ سارے انسانوں سے عجیب ہے اور عظیم ہے, کیونکہ ایک انسان ہے جو فرق ہے. ہم سارے نبیوں کو کہتے ہیں فلاں نبی بڑا ہے, فلاں نبی بڑا ہے, فلاں نبی بڑا ہے, لیکن یسوع مسیح کیا ابھی آغاز ہی ہوا ہے, اس کا پیدا ہونا ہی عجیب ہے, فرق ہے, ڈیفرنٹ ہے. اس کی پیدائش کو ہی فرق کر دیا گیا. کیسی بات ہے؟ ایک انسان کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کے پیدا ہونے کے پیٹرن کو فرق کر دیا گیا, طریقہ کار ہی بدل دیا گیا. تب سے اب تک انسان ایک ہی طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں, لیکن یسوع مسیح کے لیے خدا نے طریقے کو بدل دیا ہے, چینج کیا ہے, کیونکہ وہ الگ تھلگ انسان ہے. وہ ایک عام انسان نہیں, وہ انسانوں جیسے انسان نہیں ہے, فرق ہے. اس لیے اس کا جو بدن ہے وہ گناہ آلودہ نہیں ہے, کیونکہ وہ عام انسان کی طرح نہیں ہے. اس کے بدن کو جب دفن کیا گیا تو اس میں کوئی کیڑا نہیں پڑا, کوئی بدبو نہیں آئی, کوئی آلودگی نہیں تھی. وہ پاک بدن تھا. ہم اسے کہہ سکتے ہیں وہ پاک بدن تھا. ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی انسان کا دخل نہیں تھا. وہ کلمہ ہے جو مجسم ہوا ہے, وہ پاک ہے. ہم کہہ سکتے ہیں وہ پاک ہے. کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہر انسان سے اتنے لاکھوں ہزاروں سال ہو گئے اس دنیا کو بنے ہوئے, وہ فرق ہے. اس کا پیدا ہونا عجیب ہے. اس کا بدن کیا ہے؟ پاک ہے, پاک ہے. وہ اس کے بدن پر اور اس کی قبر پر خوشبو ڈالنے آئی ہیں, لیکن اس کا بدن جو ہے وہ جی اٹھا ہوا ہے, وہ زندہ ہے, مردہ نہیں ہے, وہ پاک ہے. سو مردوں پر لوگ خوشبوئیں ڈالتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ گل جائے گی باڈی, یہ سڑ جائے گی اور اس میں سے بدبو آئے گی. لیکن یسوع مسیح کا بدن ایسا نہیں ہے, وہ پاک ہے, پیدائش ہی سے پاک ہے, پیدا ہونے سے ہی وہ پاک ہے. اور کنواری عورت کو چنا گیا ہے, کنواری عورت کو, کسی مرد کو وہ نہیں جانتے. کنواری ہے, پاک ہے, اور اس کے اندر جو بچہ جسم لے رہا ہے, یسوع مسیح جو جسم لے رہا ہے وہ روح القدس کی قدرت سے لے رہا ہے. کس کی قدرت سے؟ ہولی اسپرٹ کی قدرت سے.
یہ ہولی اسپرٹ کون ہے؟ خدا کا روح. خدا کا روح اسے جسم دے رہا ہے. کیوں خدا ایسا کر رہا ہے؟ پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ ایک دنیا میں انسان ہے جو سب انسانوں سے عجیب ہے اور عظیم ہے. ایک ہی انسانوں میں سے، کھربوں انسانوں میں سے ایک انسان کو عجیب بنایا جا رہا ہے، اور خدا اس میں ملوث ہے. خدا یہ خود کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ آج کے انسان کو یہ پیغام ملے کہ یسوع مسیح عظیم ہے. دنیا میں ہزاروں نبی ہوں گے لیکن یسوع جیسا کوئی نہیں. وہ عظیم ہے، وہ پاک ہے. اس عورت کے حمل میں روح القدس کی قدرت اس کو جسم دے رہی ہے. روح القدس کی قدرت اسے سیڈ کر رہی ہے کہ یہ جسم لے گا. کوئی آدمی کا اس میں دخل نہیں ہے. ہے کوئی ایسا انسان؟ ہے کوئی؟ انسانی عقل اور ضمیر کہتا ہے نہیں، کوئی نہیں ہے، ایک ہی ہے. تو پھر اس کا جسم پاک ہے. ایسے باقی دوسروں کو کہتے ہیں یہ پاک ہے، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے. صرف یسوع پاک ہے جس میں کوئی داغ نہیں. اس کا بدن پاک ہے. وہ تو آپ کہتے ہو نا پاک ہے، میں تو آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں کہ یہ پاک ہے. پاک ہے یا نہیں؟ آپ کے اوپر یہ جو ہیلمٹ ہے، ڈبہ ہے، اس کے اندر بھی تو عقل ہے. بتاؤ یہ پاک ہے یا نہیں ہے؟ پاک ہے، کیونکہ کسی آدمی کا دخل نہیں، یوسف کا دخل نہیں. اور یسوع نے کبھی اپنی زندگی میں یوسف کو باپ نہیں کہا، اس نے خدا کو اپنا باپ کہا ہے. اس لیے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری پیدائش میں یوسف کا دخل نہیں، خدا کی قدرت ہے. خدا کی قدرت ہے. تو یسوع مسیح کیا ہے؟ پاک ہے. پاک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، شیطان یسوع مسیح کے بدن سے ڈرتا ہے. یسوع مسیح کے بدن سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کا بدن پاک ہے. اس کا بدن پاک ہے. شیطان، ابلیس صرف یسوع کے بدن سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کا بدن نہ گل سکتا ہے، نہ سڑ سکتا ہے، نہ مر سکتا ہے، نہ دفن رہ سکتا ہے، نہ تاریخ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا بدن پاک ہے. شیطان اس سے ڈرتا ہے. آمین. یسوع مسیح گناہ آلودہ بدن کی صورت میں پیدا ہوا ہے. اس کا بدن گناہ آلودہ نہیں ہے. یعنی جو انسانی بدن ہے وہ آلریڈی گناہ میں تھا، تو اس کی صورت اس نے بدن کی لی ہے. اس کا اپنا بدن آلودہ نہیں ہے. رائٹ؟ جیسے ایک یہ ہمارے پاس بین ہے، ہم اس کو کہتے ہیں اگر یہ ڈسٹ بین ہے تو آپ کتنی ڈسٹ بینز رکھ لیں تو آپ کہیں گے یہ کچرے والی بین ہے، اس کے اندر کچرا ہی باسکٹ میں ڈلتا ہے. لیکن جس بدن کو یسوع نے لیا ہے وہ ایسا نہیں ہے. سارے بدن آلودہ ہو سکتے ہیں، تو اس نے گناہ آلودہ بدن کی صورت تو لی ہے لیکن اس کا اپنا بدن آلودہ نہیں ہے، وہ پاک ہے. اس کا بدن خود کیا ہے؟ پاک ہے. اس کا بدن پاک ہے. اور ہوتا ہے نا، ماں پیوں نے گناہ کیتے تھے پھر منتقل ہوں دے رہے. یسوع کے اندر یوسف کا کوئی گناہ منتقل نہیں ہوا. نسل کون بڑھاتا ہے؟ آدمی بڑھاتا ہے. لیکن یہ بھی دنیا کے لیے چیلنج ہے کہ وہ عورت کی نسل سے آیا. لوگ عورتوں کو کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں نا، اس لیے آپ دیکھیں زیادہ مجمع میں آپ کو انجیل کے لیے عورتیں نظر آئیں گے. اور لگی رہو، آپ خدا کی فوج ہو. آدمی سست ہوتے ہیں، کوئی بندے، آپ لگے رہو. یہ دنیا میں آدمی عورت کا کھیل اور قانون اور رسول ہے. آسمان پر آپ روحیں ہو جس کے لیے یسوع نے جان دی ہے. زوردار انجیل سناؤ، منادی کرو، گھر گھر انجیل لے کے جاؤ. صرف فتنے نہیں پھیلانا، لڑائیاں نہیں کرنا، چگلیاں نہیں کرنا، انجیل زور سے سناؤ. آمین. انجیل زور سے سناؤ. عورت کی نسل سے، ساری دنیا آدمی کی نسل سے پیدا ہوئی ہے.
दिस इज फर्स्ट टाइम। सारे नबी आदमी की नस्ल से, लेकिन वो औरत की नस्ल से आ रहा है। और खुदा ने पैदाइश में ही कह दिया था औरत की नस्ल से आकर वो शैतान के, इब्लीस के सर को कुचलेगा। उसने कुचल दिया, उसने कुचल दिया। सो उसमें कुदरत पाई जाती है। सो बदन रखते हुए उसे प्यास लगी, उसने कहा मैं प्यासा हूं। बदन रखते हुए उसे नींद आई, वो सोया भी। बदन रखते हुए उसे भूख भी लगी। इब्लीस ने उसे कहा इन पत्थरों को कह के क्या बन जाए, लेकिन उसके बावजूद वो अपने बदन की ख्वाहिशात पर गालिब आया। हम कहते हैं जिस्म कमजोर है। जिस्म क्या है? कमजोर। दुनिया में सबसे कमजोर जिस्म है। इंसान का ज़हन जितना मर्जी ताकतवर हो, अगर जिस्म में हाई ब्लड प्रेशर हो जाए आप लड़ नहीं सकेंगे, बिस्तर पे पड़ जाएंगे। आपके पास जितना मर्जी इल्म हो, अगर जिस्म कमजोर कर देगा आप बाहर नहीं लड़ सकेंगे, आपके अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे और मैं की गल करा, अंदरों ही मरने पे हैं। इसे जिस्म क्या है? कमजोर है। वक्त के साथ, उम्र के साथ जिस्म कमजोर हो जाता है, इस पे चिड़ूड़ियां आ जाती हैं। अंग्रेजी में चिड़ूड़ियों को क्या कहते हैं? रिंकल्स। बदन जो है ये कमजोर होता है। जब पैदा होते हैं जवान जिस्म होता है, लेकिन उम्र के साथ साथ ढलता है। बाल सफेद शुरू हो जाते हैं, मेरे भी शुरू हो गए। जब मैंने मुनादी शुरू की तो स्यों काले थे और ज्यादा थे, कम भी हुए, सफेद भी शुरू हो गए। लेकिन शुक्र है पुलपट पे ही हुआ है जो भी हुआ है। आया जवान था, बुढ़ा हो रहा हूं, लेकिन शुक्र है पुलपट पे ही हो रहा हूं। आमीन। तो अच्छी बात है, आप अंजील सुनाते बूढ़े हो जाए। आमीन। तो जिस्म क्या कमजोर है, तवाना भी होता है, कमजोर भी हो जाता है। जिस्म कमजोर होता है, जिस्म कमजोरी है इंसान की, इसमें कमजोरियां हैं, जिस्म में कमजोरियां हैं, ख्वाहिशात हैं। जिस्म कमजोर होता है, जिस्म मारता है इंसान को। जिस्म में मौत होती है, जिस्म मारता है। जिस्म में बीमारी आती है, जिस्म बुढ़ा होता है। इसलिए शैतान ने जिस्मानी ख्वाहिशात को इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जानता है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी जिस्म है। इसलिए वो जिस्मानी लोगों को इस्तेमाल करता। लेकिन जो रूह से पैदा हुआ और जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्मानी है। जिस्मानी जिस्म को वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि जिस्म के वीक, जिस्म क्या हो जाता है वक्त के साथ? कमजोर। आंखें धुंधला जाती हैं, घुटने बैठ जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बदन के अज़ा कमजोर होने लगते हैं, जिस्म कमजोर होता है। लेकिन खुदा ने इरादा किया है कि मैं इस कमजोरी से इब्लीस का मुंह तोड़ दूंगा। इसलिए उसने जिस्म इख्तियार करके इब्लीस को नेस्त कर दिया। Do you see that? So remember, यीशु मसीह ने इस जिस्म में इंसानी फितरत को खुदाई फितरत के साथ मिला दिया। मैं ऐसे कहूंगा, उसने इंसानी फितरत को इलाही फितरत के साथ मिला दिया। कुदरती नेचुरल नेचर को उसने डिवाइन नेचर के साथ मिला दिया। रूह के साथ हम मिल गए। इस जिस्म में हम रूह के साथ मिल गए, खुदा की रूह के साथ, अपने बाप की रूह के साथ। जिस्म कमजोर जरूर है, लेकिन रूह मुस्तहिद हुई है यीशु मसीह की कुदरत से, उसके लहू से। इसलिए उसने बदल लिया कि इंसान का मलाप कराए, बदनी फितरत का रूहानी फितरत के साथ मलाप कराए। बदनी फितरत क्या है?
कमजोरियां, ख्वाहिशात, इंसान जिस्म के सबब से आजमाइश में पड़ता है। जिस्म की ज़रूरियात बहुत है, जिस्म के लिए वो सब कुछ करता रहता है। जिस्म की ब्यूटी, जिस्म की खुराक, जिस्म की ख्वाहिशात, कुछ भी कर ले। कुछ साइंसदान कहते हैं ज्यादा वर्जिश करो, ज्यादा वर्जिश करने वाले भी मर गए। कुछ कहते हैं वर्जिश ना करो, वो भी मर गए। जिंदगी सिर्फ यीशु देता है, दिन उसने मुकर्रर किया है। मैं ये नहीं कहता वर्जिश ना करो, करो, लेकिन ज्यादा ना करो कि वर्जिश करते मर जाओ। हर चीज को बैलेंस करो। सो जिस बदन के सबब से आजमाइश हुई आदम और हवा के, जिस बदन के सबब से वो गिरे और इंसान कहता रहा जिस्म है ना, जिस्मानी आ, कमजोर आ, की करिए, डिग जाने आ, ढह जाने आ, अबलीस दे फाए फै जाने आ, तो सानू फड़ लैंदा। जिस्म है ना, जिस्म है ना, की करिए। यीशु ने आके इस जुमले को बदला और बताया कि ऐ भी तो जिस्म ही है, मैं भी तो जिस्म ही लेता है, लेकिन मैं गालिब आ गया। मैं जिस्म पर गालिब आ सकता हूं, तुम भी गालिब आ सकते हो। मैं इसे काबू में कर सकता हूं, तुम भी काबू में कर सकते हो, और इसको खुदा की फर्मा बरदारी के ताबिया कर सकते हो। आमीन। इसलिए यीशु मसीह का जिस्म क्या है? पाक है। सो उसने जिस्म अपनाया ताकि इब्लीस के सर को कुचले। कुछ लोग कहते हैं मैं पैदा ही क्यों हुआ हूं, कुछ लोग कहते हैं हम बच्चे इतने पैदा ही क्यों करें। मैं ये नहीं कहता ज्यादा पैदा करें, लेकिन आप जो भी पैदा कर रहे हैं बच्चा, इस उम्मीद से करें कि ये भी इब्लीस को कुचलेगा, इसका बदन शैतान को कुचलेगा। मैं क्यों पैदा हुआ हूं? मैं शैतान के सर को कुचलूंगा। मुझे कल पास्टर विजिट्स पर थे, तो उन्होंने बताया कि सोफर्ड रोड की गली में, सिस्टर रुखसाना है यहाँ पर, हाँ, कौन सी गली नंबर आपकी? 15 नंबर। एंड शी वाज सेइंग ऑलमोस्ट 7 नौजवान लड़के उन्होंने खुदकुशी की। डू यू सी? समटाइम पीपल अंडरस्टैंड इट कि हमारी जिंदगी का कोई वजह ही नहीं है, हमारे बदन की वजह है कि हम इस जिस्म से शैतान को कुचलेंगे। आप नहीं समझे। अगर आप समझते तो आप लुडियां डाल दे। मेरा हाथ इसलिए दिया गया है कि मैं शैतान को कुचलूं, मेरा पांव इसलिए मुझे लगाया गया कि मैं इब्लीस को कुचलूं, मुझे मुंह इसलिए दिया गया कि मैं इब्लीस को कुचलूं। मेरे बदन देने की यही वजह है। कुछ लोग हाथ काट देते हैं, सर काट देते हैं, वो समझते हैं हमारे जिस्म का कोई फायदा नहीं है, लेकिन इस जिस्म का फायदा है, ये इब्लीस को मारने के लिए है। हालेलुया। जैसे यीशु ने अपने बदन से इब्लीस को तबाह किया है, हम भी अपने बदन से इब्लीस को तबाह कर रहे हैं। समझो। अगर हम बदन में नहीं आएंगे तो हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नस्ल के वादों के वारिस नहीं होंगे। यीशु मसीह ने इसलिए बदन इख्तियार किया, वो उनकी नस्ल के वादे को पूरा कर रहा है, वो औरत की नस्ल के वादे को पूरा कर रहा है। अहदे अतीक की खिदमत हम पूरी कर रहे हैं बदन में आके। कौन सी खिदमत? नबी की, काजी की, काहिन की और बादशाह होने की खिदमत को पूरा कर रहे हैं। इसलिए बदन में आना जरूरी है। अभी आप आखिर में आपको ये मैसेज आग लगा देगा। आज आपके बदन वैसे नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे, बदन बदल जाएंगे। अभी तो सिर्फ मैं 45% कलाम पे आया हूं, 55% रहता है। You will be changed, you will feel fire of the Lord. उसने हमें बदन दिया है, हम इब्लीस को कुचलें। उसने बदन लिया है, वो इब्लीस को कुचले। ये बदन कमजोरी नहीं है, हमारा जोर है। इसको देख के बुढ़ा होते हुए कमजोर ना हो। जब याकूब देखता है, इब्राहिम देखता है, मूसा देखता है अपने बदन को
کہ وہ بوڑھے ہو رہے ہیں تو وہ کمزور نہیں ہو رہے, وہ خوش ہوتا ہے کہ اس بدن نے ابلیس کو مار دیا ہے. آپ کا بدن اسے مارے گا. آپ کی تالیاں ابلیس کے منہ پہ چماٹے مار رہی ہیں, ہلکی کیوں مار رہے ہیں؟ کس کس کے ابلیس کو مارے. آمین. کچھ لوگ ابلیس کو چماٹا بھی پیار سے مارتے ہیں, رشتہ کرنا. ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے, ہمارا رشتہ یسوع سے ہے. سارے لوگ تالیاں نہیں بجاتے. کچھ لوگ خدا کے گھر میں آ کے تالیاں نہیں بجاتے, وہ ہاتھ باندھ دیتے. لیکن یہ ہتھیار ہے. جب ہم تالی بجاتے ہیں یہ روحانی اثر کرتا ہے. آمین. یہ روحانی جنگ کی علامت ہے. ہاں, اسے خداوند زور رکھتا ہے. سو اس کا بدن جی اٹھا ہے. اس کا پہلا پروسیس کیا ہوا؟ بدن مر گیا. بدن کیا ہوا ہے؟ جسم مرتا ہے. جسم مرتا ہے. ایک دوسرے کو کہیں جسم مرتا ہے, لیکن مرا ہی نہیں رہتا. اس نے اپنے بدن کو جی اٹھایا ہے. اس کا بدن جی اٹھایا ہے. بدن جی اٹھا ہے. بدن کمزور ہے. ابلیس نے اس بدن کو چھیدا ہے. کوڑے لگائے, نیزہ لگایا, کیل ٹھوک دیے, کانٹوں کا تاج پہنایا, اس بدن کو چھید دیا اور اس بدن سے خون کو نکال دیا. اس نے کہا یہ بدن مر جائے گا, کیونکہ وہ باطنی کو ایسے ہی مارتا ہے. وہ بدن رکھنے والوں کو مارتا ہے, لیکن بدن ان کا مر جاتا ہے جو اس کی نسل سے نہیں ہوتے. یسوع مسیح خدا بھی ہے, وہ جی اٹھا ہے. وہ جو مرا تھا وہ جی اٹھا ہے. وہ مرا ضرور ہے لیکن وہ جی اٹھا ہے. خدا نہیں مرا, بدن مرا ہے. شیطان کو بتایا ہے کہ خدا نہیں مرا, بدن مرا ہے. اس بدن کو بنانے والا خدا زندہ ہے, وہ پھر سے اٹھا لیتا ہے, وہ پھر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے. بدن مرتا ہے لیکن بدن کو بنانے والا اسے پھر جی اٹھاتا ہے, کیونکہ یہ بدن پاک ہے, یہ بدن عجیب ہے, یہ بدن قدوس کا ہے. یہ بدن کسی عام نبی کا ہے کہ پڑا رہے تو پڑا رہے اور پھر مزار بن جائے. یہ بدن یسوع کا ہے جو کباری کے اندر سے پیدا ہوا ہے. یہ جی اٹھے گا, یہ جی اٹھا ہے, یہ جی اٹھا ہے. This is not the normal. ابلیس نے سمجھا ابراہیم کی طرح پڑا رہے گا, موسیٰ کی طرح اس کا مزار بنے گا, داؤد کی طرح پڑا رہے گا. یہ داؤد نہیں, یہ ابراہیم نہیں, یہ موسیٰ نہیں, یہ ان سے بڑا ہے. اس کی قبر خالی ہے, اس کا بدن جی اٹھا ہے. یہ یسوع کا بدن ہے. تو ایویں ہی سمجھے, تو نے سمجھا یہ ایلیا ہے, یہ کوئی اور نبی ہے, ہون مریا تو مریا ہی رہے گا. یہ یسوع ہے. اس لیے تو سارے یسوع نام سے جلتے ہیں, اور جس نے اپنی زندگی میں یسوع نام رکھا ہوتا ہے لوگ سڑتے ہیں, کہتے ہیں ان کے جیسا تو ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں ہے. جیسا ان کے پاس ہے, جیسا ان کے پاس ہے ہمارے مذہب میں تو ایسا نہیں ہے, ہمارا نبی تو ایسا نہیں ہے. ہم نے کہا نہ ہو, یہ ہمارا نبی سے بڑھ کر ہے. یہ پڑا نہیں رہا, یہ جی اٹھا ہے, یہ زندہ ہے. اور کچھ لوگ شادی کے لیے بڑے پریشان رہتے ہیں. یسوع نہیں پریشان ہوا. کچھ نبی بھی بڑے پریشان رہے ہیں, موسیٰ بھی بہت پریشان تھا, لیکن یسوع نہیں. اس کا بدن پاک ہے. اس کا بدن کیا ہے؟ پاک ہے. And do you know, اس نے اپنے بدن کو, حقیقی بدن کو, اس نے الہی بدن میں تبدیل کر دیا. وہ اسے چھونے لگی, اس نے کہا ابھی نہیں چھوو, کیونکہ اب یہ بدن کیا ہو گیا ہے؟ جلالی ہو گیا ہے. انسانی بدن کو
जी उठने के बाद कौन सा बदन हो गया? Do you see? अब उसमें खून नहीं है, अब उसको भूख नहीं लगेगी, अब नहीं वो सोएगा, अब नहीं कहेगा मैं प्यासा हूं। बदन है। यहोवा विटनेस वाले आसमान की तस्वीर बनाते हैं तो ट्राली के अंदर उन्होंने गोभी और फूल गोभी भी रखी होती है। उनको लगता है आसमान पे बंद गोभी भी खाएंगे, लेकिन बदन जलाली होगा, फिर भूख भी जलाली होगी और हम कदूस 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 कहते रहेंगे। उधर कोई बंद गोभी नहीं होगी, ना फूल गोभी होगी। हालेलुया। कोई भूख और प्यास नहीं होगी, रोना और दांतों का पीसना नहीं होगा। बदन क्या हो जाएगा? उसने कहा मेरा बदन क्या हो गया? जलाली हो गया। लेकिन उसने तोमा को कहा तू छू ले, तू देख ले। डू यू से? मैं जी उठाऊं। क्या दिखाया उसने? बदन दिखाया। अच्छा, ये बदन पे बहुत सियासत होती रही है। जैसे वो पैदा हुआ तब भी बच्चों का कत्ल हो गया, और बदन पर लोग झूठे नजरियात भी रखते रहे। कहते हैं यीशु मसीह का खुदा ने डबल शॉट कर दिया, कॉपी बना दी, और यीशु को ले गया ऊपर, और जो नकली यीशु था उसको कुर्बान कर दिया। यानी इसका मतलब यीशु मसीह भी चकमे देता है, खुदा चकमे देता है। अपना बेटा बचा लिया और किसी और इंसान को हम शक्ल बना के मरने दिया। कह रहे हैं खुदा चकमे दे, धोखा देता है खुदा। एक को बचा लिया, दूसरे को कहे तू मेरा थोड़ी है, तू मर जा। अगर वो खुदा है तो उसके लिए मौत क्या चीज है? वो मौत की वादी में से गुजर जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं ओ सुनो, कुछ लोग कहते हैं ओ यीशु मसीह जहन्नम में गया। तो जहन्नम ने उसे क्या कहना है? जहन्नम तो उसने खुद बनाया हुआ है, वो जहन्नम में से गुजर के बाहर आ गया। हाँ, जहन्नम उसके लिए थोड़ी था। अब आप आग में प्लास्टिक की चीज फेंकेंगे तो वो प्लास्टिक पिघलेगी ना, तो जब वो है ही नहीं प्लास्टिक का तो वो पिघलेगा कहां से? वो तो खुद आग है जो भस्म कर देती है। वो उसे जहन्नम क्या कहेगा? जिसे मौत ने कुछ नहीं कहा उसे जहन्नम काबू में करेगा। वो उस पर भी गालिब आया है, वो उस पर भी गालिब आया। उसका बदन गालिब आया है, उसने बदन को इलाही बना दिया है। लिसन, टेक इट, इसे लीजिए। उसने बदन को जलाली बना दिया। अब कहते हैं जलाली तू खुदा है। उसने जलाली बना दिया, अबलीस को तबाह कर। उसने अपने बदन से अबलीस को तबाह कर दिया। आपके बदन से वो शैतान को शिकस्त देगा, आपके बदन को वो पाक करेगा, आपके बदन को वो साफ करेगा, आपके बदन को बेदाग करेगा, आपके बदन को असरे नो कर देगा, आपके बदन को वो साफ करेगा। अपने खून से आप इसी बदन से शैतान को शिकस्त देंगे। इसी बदन से, इसी बदन से। आपका यही बदन चाहे मर जाए, झड़ जाए, जल जाए, दफन हो जाए, खाक हो जाए, वो इसको जी उठाएगा। वो खाक के ढेर से फिर चिंगारियां पैदा करेगा। वो खुदा है। वो कहते हैं मरते वक्त खाक है, खाक खाक में चली गई। वो खाक से फिर बुला लेगा। वो चीज़ों को ऐसे बुलाता है जैसे पहले से मौजूद है। और जब वो हमें बुलाएगा, वो जो मर गए वो जो जी उठेंगे, तो फिर उनका बदन जिस्मानी नहीं जलाली होगा। उनका बदन फिर मैदा नहीं होगा। यस, ताली कम हो गई है क्योंकि मुझे पता है कोरमा खाना था। फिर मैदा नहीं होगा, फिर जलाली मैदा होगा। आमीन। फिर नो एच पाइलोरी, कोई मसला ही नहीं, सब जलाली हो जाएगा। अभी बदन क्या है? कमजोर है, लेकिन वो इसे बदल रहा है अपने लहू की धारा से। हम इसी बदन, एक दूसरे को कहा मैं अपने बदन से इब्लीस को तबाह कर दूंगा। हालेलुया। फिर को एक दूसरे, बदन मेरा इब्लीस को तबाह करेगा। इब्लीस जो है वो तबाह करने के लिए बदन में आना चाहता है, क्योंकि बदरूहों को बदन नहीं दिया। बदरूहों को, जिन्नों को, जन्नात को बदन नहीं मिला। वो बदन ढूंढती हैं।
वो चाहती हैं बदन में आए, उनके पास बदन नहीं है, हमारे पास बदन है। और यही बदन जब दुआ करता है, गैर जुबानें बोलता है, यीशु को पुकारता है, उसकी प्रस्तिश करता है, शैतान को आग लगा देता है। इसलिए वो बदन के खिलाफ है। वो खुदकुशी कराना चाहती है, कत्ल कराना चाहती है, खराब करना चाहती है, इसको गालना और साड़ना चाहती है। लेकिन ये बदन यीशु का गवाह होगा। बोलो, अब ये बदन यीशु का गवाह होगा। अब यीशु क्या चाहता है? उसने अपने बदन से सारा कुछ किया। इस्राएल को उसने कहा कि तू मेरी बीवी है, दुल्हन है। इस्राएल को उसने बहुत सारे लक़ब दिए पुराने अहदनामा में, लेकिन कभी नहीं कहा कि तुम मेरा बदन हो। यीशु मसीह हमारा सर है और हम उसका बदन है। सब हम बदन है। यीशु ने कहा तुम मेरा बदन हो, तुम मेरी कमजोरी नहीं हो, अब तुम मेरा बदन हो। जैसा मेरा बदन गालिब आया, अब तुम मेरा बदन हो, तुम गालिब आओगे। मेरा बदन मर गया था, जैसे लाजर मर गया था, वो जी उठा, तुम भी जी उठोगे। तुम मेरा बदन हो, तुम मेरा बदन हो। यीशु कह रहे तुम मेरा बदन हो। यीशु मसीह कह रहे तुम मेरा बदन हो। उसका बदन पाक है। यीशु कह रहे तुम मेरे पाक बदन का हिस्सा हो। मेरा बदन गालिब आया, तुम गालिब आओगे। मेरा बदन जी उठा है, तुम जी उठोगे। मेरे बदन ने शैतान को शिकस्त दिया, तुम भी शिकस्त दोगे। तुम मेरा बदन हो। यीशु कह रहा है हम उसका बदन है। अगर आपको कमजोरी और ये कहें कि मैं उसका बदन हूं, अगर आप मर रहे हो तो कहो मैं उसका बदन हूं। हम सब उसका बदन है। उसने अपने खून से हमें अपना बदन बना लिया है। अब कलीसिया सिर्फ दुल्हन नहीं बल्कि उसका बदन है। अगर कोई हमें छेड़ता है तो यीशु के बदन को छेड़ता है। अगर कोई हमें दुख देता तो वो यीशु के बदन को दुख देता है। मैं उसका बदन हूं, मैं उसका बदन हूं। मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं मालूम मेरी बात को आप कैसा लेंगे। आज से 4-5 हफ्ते पहले मैं अकेला अपने कमरे में दोपहर को सो रहा था। मैंने देखा कि कोई बदरू है, वो कोशिश कर रही है मुझ में दाखिल हो। और क्या हो रहा है, जैसे वो अंदर आने की कोशिश करती है, आपने देखा जैसे बिजली की 2 तारें और स्पार्क होता है, जैसे वो मुझे छूने लगती है स्पार्क होता है और धुआं निकलता है। आई वाज लुकिंग एट ये क्या हो रहा है। और खुदावंद ने बताया तू मेरा बदन है और इसके अंदर इब्लीस दाखिल नहीं हो सकता। ये उसे आग लगा देगा। मैं मसीह का बदन हूं, मैं मसीह का बदन हूं, मैं मसीह का बदन हूं। आप मसीह का बदन है, हम मसीह का बदन है, हम मसीह का बदन है। और मसीह के बदन में हम एक हैं। कहिए मसीह के बदन में मैं एक हूं। हम मसीह का बदन है, हम मसीह का बदन है, हम मसीह का बदन है। हम गालिब आए हैं, हम गालिब आए हैं। हम जी उठेंगे। हम अपने बदन से इब्लीस को मार देंगे। ख्वाहिशात को हम अपना गुलाम बना देंगे। हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे, क्योंकि हम मसीह यीशु का बदन है। मैं मसीह का बदन हूँ। मैं जब ये बार बार कह रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे छोड़ रही हैं, कमजोरियाँ मुझे छोड़ रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं ये मसीह का बदन है। मसीह के बदन को पानी ने नहीं डुबोया, कब्र ने अपने अंदर नहीं रखा, जहन्नम में नहीं लिया, बल्कि वो आसमान पे चला गया। मसीह का बदन आसमान पर जाएगा। मसीह का बदन आसमान पर जाएगा। ये जलाली बदन है, ये जलाली बदन है, ये जलाली बदन है। मैं मसीह का बदन हूँ, मैं मसीह का बदन हूँ। उसने कहा तुम मेरा बदन हो, तुम मेरा बदन हो, तुम मेरा बदन हो। हाँ, उसने कहा तुम मेरा बदन। आपको पता है जादूगर क्या करते हैं? वो लफ्ज़ों का विर्द करते हैं। लेकिन जब हम ये लफ्ज़ बार बार कह रहे हैं मैं मसीह का बदन हूँ, अगर किसी पे जादू तवीज़ किया हुआ तो वो तवीज़ बेअसर होते जा रहे हैं। क्या मसीह के बदन पर जादू चल सकता है? आपको ऊंट की हड्डी रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आज से ये बोले मैं मसीह का बदन हूँ। आपको गधे के पाँव के नीचे वो जो होता है उसे क्या बोलते हैं? खुली खुरी। वो आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि कारोबार मेरी तरफ आए, तरक्की मेरी तरफ आए। आप मसीह का बदन है, तरक्की आपकी तरफ है। मैं मसीह का बदन हूँ, तरक्की मेरी तरफ है। मैं गालिब हूँ। बहुत सारों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, दिल की धड़कनें नॉर्मल हो गई हैं, मौत पीछे हट गई है,
जादूगरी जाती रही है और लानतें जाती रही हैं। मसीह के बदन पर कोई लानत नहीं है, कोई छुरी नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई बतालत नहीं है। उसका बदन पाक है, उसका बदन गालिब आया है, उसने अपने लहू को बहाकर बदन को छुड़ा दिया है। मैं मसीह का बदन हूँ, मैं मसीह का बदन हूँ, मैं मसीह का बदन हूँ, मैं मसीह का बदन हूँ। देखो सुस्ती चली गई है। सुस्ती को नहीं हमने बताया, हमने अपने आप को बताया मैं मसीह का बदन हूँ। बदन ने कहा मैं सुस्त नहीं हो सकता, मैं तो यीशु का बदन हूँ। बदन ने कहा मैं कमजोर नहीं रह सकता, मैं तो यीशु का बदन हूँ। हमारे पास जलाली उम्मीद है। मैं मसीह का बदन हूँ, मैं मसीह का बदन हूँ, मैं मसीह का बदन हूँ। मैं जी उठाया जाऊंगा, मैं जी उठाया जाऊंगा। ये ज़हनी बातें नहीं है, ये इलाही बातें हैं। कलाम सच है। मैंने बदन इसलिए इख्तियार किया कि मैं दुनिया पर इब्लीस को शिकस्त दे दूं। मेरा बदन शैतान को शिकस्त देने के लिए है, उसे पालने के लिए नहीं है। मेरे बदन की कमज़ोरियां जाती रहें, क्योंकि ये बदन अब मेरा नहीं बल्कि मसीह का बदन है। मसीह का बदन है, मसीह का बदन है, मसीह का बदन है। इसलिए वो चर्च को कह रहा है तुम मेरा बदन हो, तुम मेरी कमजोरी नहीं, तुम मेरी ताकत हो, तुम मेरी तवानाई हो, तुम मेरा जोर हो, क्योंकि तुम मेरा बदन हो। मेरा बदन मर नहीं सकता, मेरा बदन मर नहीं सकता, मेरा बदन जी उठेगा। अगर आपका बदन का कोई हिस्सा मरा हुआ है तो वो जी उठेगा। अगर आप औलाद पैदा करने वाले नहीं, आपका हमल मरा हुआ है तो वो जी उठेगा, क्योंकि ये यीशु का बदन है, उसने खून से खरीदा हुआ है। वो अकाबों की मानद हमें असर नज़ूर बख्शेगा। ये बदामों से नहीं, ये अखरोटों से नहीं, यीशु की खून की कुदरत से होगा। यीशु के खून की कुदरत से, यीशु के खून की कुदरत से, यीशु के खून की कुदरत से, यीशु के खून की कुदरत से। पिछले दिनों में मेरी तबीयत ख़राब हुई, हम हॉस्पिटल गए, ब्लड प्रेशर बहुत हाई था और डॉक्टर्स ने, आगा खान ने 52,000 के टेस्ट कर लिए, एक्सरे, वो ECG, ब्लड, XYZ। बाद में आके कहने लगे ये वायरल है और कुछ भी नहीं है, सारी रिपोर्टें ठीक हैं। मैंने कहा यीशु मसीह का बदन ठीक ही रहेगा। ये यीशु का बदन है, ये यीशु का बदन है, ये यीशु मसीह का बदन है, ये यीशु मसीह का बदन है, यीशु मसीह का बदन है। जब आप कह रहे हैं यीशु का बदन है, यीशु का बदन है, इब्लीस तबाह हो रहे हैं, उसके खेमे तबाह हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो लोग कहते हैं जिस्म कमजोर है, दिल करदा कशिश खिंचती है। कोई खूबसूरत जी कुड़ी लंघ रहे तो कशिश खिंचती है, कोई मुंडा लंघ जाए तो कशिश खिंचती है। जो यीशु अपने खून नाल खिंच ले, फिर कोई नहीं खिंचदी ना खिंचदा है, यीशु मसीह खिंच लैंदा। हाँ, यीशु खिंच ले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का बदन गालिब आता है। आमीन। यीशु का बदन क्या आता है? सो यीशु मसीह के बदन पर इब्लीस का कोई फार्मूला नहीं चला। उन्हें कहा रोटी का चल जाएगा, रोटी तो फंसोगे ना। हाँ, उन्हें कहा रोटी से फंस जाएंगे। इन पत्थरों को कह के उन्हें कहा नहीं, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, ये बदन है खुदा का जो उसने लिया है, वो उसके कलाम से भी जीता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं ए शेक पियो, ए शेक नाल जिस्म सही होएगा। ए शेक नाल नहीं सही हुंदा, ए जेड़ा बदन है ना मसीह, ए यीशु दे कलाम नाल सही हो जाता है। तबीयत बिगड़ी होती है लेकिन यीशु का लहू से सही कर देता है। आमीन। इस पे सिर्फ दवाइयाँ नहीं चलती। कुछ लोग जल्दी से हर चीज़ का इलाज के दवाई, छेती ना नमकी दे दो, सिरप। मैं ये नहीं कह रहा दवाई ना पीना भाਵੇਂ मर जाओ। मेरा मतलब ये है सिर्फ दवाई हमें नहीं बचाती, यीशु का लहू हमें बचाता है। यीशु का लहू, यीशु का लहू। हालेलुया, हालेलुया। ये पता बदन क्यों जी उठा है? क्योंकि ये बाप का फर्मा बरदार है। लाजर का बदन जी उठा है। चर्च मुर्दा नहीं रहेगा,
पढ़िए पहला कुरिन्थियों 12वां बाब और उसके 27वीं आयत। अभी 20% मैसेज रह गया। हालेलुया। थक तो नहीं गए? ये बदन यीशु का है, ये थकता नहीं है। हालेलुया, ये जी उठता है। आमीन। पहला कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी 27वीं आयत। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो। पालूस क्या कह रहा है? तुम सब मिलकर मसीह का क्या हो? बदन हो। मसीह का क्या हो? बदन हो। और फर्दा फर्दा क्या हो? अज़ा हो। अज़ा हो। आमीन। रोमियो 12 बाब और उसकी 5वीं आयत। रोमियो 12 बाब और 5वीं आयत। इसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं। मसीह में शामिल होकर क्या है? एक बदन है। शामिल होना है। जो कोई शामिल नहीं वो बदन नहीं है। शामिल होना है। कुछ लोग शामिल नहीं होते, घर में बैठ जाते हैं। नो 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 नो। जिनकी कोई वजह है मेडिकल, वो हमें बराह रास्त ईमान से शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो ऐसे ही जानबूझ के नहीं आते वो शामिल नहीं होते। अभी मेज आएगी, वो शामिल नहीं होंगे। ये शामिल करने के लिए, यीशु मसीह का खून और बदन शामिल करने। कुछ लोग शामिल ही नहीं होंगे। शामिल होंगे तो बदन होगा। बपतिस्मा में शामिल करता है। कुछ लोग पानी का बपतिस्मा ही नहीं लेते। जब आप शामिल ही नहीं होंगे, एक कैसे होंगे? कुछ लोग कहते खैर है, तू सेन च रोटी खा ला, तू छत ते खा ला, तू मंजे ते खा ला, तू किचन ते खा ला, खैर है। नहीं 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 पुत्र, एक जगह ते खाओ। ऐ शामिल होना सानू एक करेगा। वो कह रहा हर कोई अपनी अपनी बारी से खा लेता है। कोई पहले खा लेता है और कोई, लेकिन एक साथ खाएंगे क्योंकि हम मसीह के बदन में शामिल हैं। यह हमें मसीह के बदन में शामिल करता है। कैसे वो हमें अपने बदन में शामिल करते हैं? बपतिस्मा देकर और पाकमीज रोटी और खून देकर हमें वो शामिल कर लेता है। अब हम उसका बदन बन गए। शामिल होकर हम उसका क्या बन गए? मत्ती की इंजील 26वां बाब और 26वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स। 26वां बाब और 26वीं आयत। खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है, लो खाओ, ये मेरा बदन है। उसने तशबीहन रोटी दी है। उन्हें कहा इसको खा लो, ये खाओगे इसमें क्या हो जाओगे? मेरे बदन में शामिल हो जाओगे। तो मेरा बदन हो। तो कोई बपतिस्मा ना ले, उसका बदन ना ले, तो क्या मैं उसका बदन हूं, मैं शामिल हूं। तुम उसका। पहला कुरिन्थियों 10 बाब 16 आयत। पहला कुरिन्थियों 10 बाब 16 आयत। और बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? शराकत का क्या मतलब है? शामिल होना। खून और बदन हमें उसमें क्या करते हैं? कह रहा है ये जब हम लेते हैं तो ये उसमें शमूलियत करना नहीं है, हम उसमें शामिल होते हैं। ये उसकी मेंबरशिप है। चर्च आपको कार्ड देकर शामिल करता है, लेकिन मसीह आपको खून और बदन देकर शामिल करता है। हम उसके खून और बदन में शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 6 बाब, आखिरी वर्स है। यूहन्ना की इंजील 6 बाब 53 से 58 वर्स, गौर से सुनना। यूहन्ना 6 बाब 53 to 58 वर्स। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, जब तक तुम उसके बदन को ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं, लाइफ नहीं होगी, बदन मर जाएगा। फिर जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, जलाली उम्मीद उसकी है। फिर और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। ये बदन, उसका बदन होना हमें जिंदा करेगा।
आखिरी दिन उसे मैं क्या करूंगा? जिंदा करूंगा, क्योंकि उसका बदन जी उठा है। फिर क्योंकि मेरा गोश्त फी हल हकीकत खाने की चीज सो मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज है, ये खाया जा सकता है। फिर और मेरा खून फी अल हकीकत पीने की और चीज उसका है। खून फिल हकीकत पीने की चीज है। फिर जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हाँ। वो मुझ में कायम रहता है वो और मैं मुझ में उसमें। कायम है, वो मुझसे जुड़ा हुआ है और मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। उसके खून और बदन ने हमें उसमें जोड़ दिया है। आए फिर उसके लिए जोरदार ताली बजाएं। तो यीशु मसीह बदन समेत आसमान पर उठाया गया है। आप बदन समेत आसमान पर उठाए जाएंगे। आमीन, आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करें और शुक्रगुजारी करें। हाँ, कुर्बानी के लिए शुक्रगुजारी करें। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.